Hey guys, I'm really sorry for the net, the Zoom meeting stuff. But let's start again. Okay. 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 So we were at. Okay. Now we are starting again. I hope my screen is visible. Yes, it is. Okay. And now we're going to start again. So first we have our LinkedIn profile picture. Okay, the LinkedIn profile picture should be basically highlighting your professionalism, and secondly, it should be decent. It shouldn't be your selfies. ठीक है. मैं आपको प्रोफाइल की एग्जांपल्स भी दिखाऊंगी जिसमें सेल्फीज वगैरह दिखा लोग लगा रहे होते हैं, वो मतलब इफेक्टिव इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करता है रिक्रूटर्स के ऊपर. क्योंकि आप लोग अगर देखा जाए तो अगर आप लोग वर्चुअल इंटर्नशिप करेंगे ना, जैसे गूगल के साथ या फिर किसी भी और इंटर्नशिप में वर्चुअली, तो आप रिक्रूटर्स ये देखते हैं कि कैंडिडेट कितना ज़्यादा डिसेंट है और कितना ज़्यादा उसमें पोटेंशियल है जो उसके फेस पे शो हो रहा होता है. ओके, वी हैव. तो इस तरह से अब हमारे पास हमारा बैकग्राउंड क्या शो हो रहा होता है, जो हमारी डोमेन, हम जिस डोमेन में पढ़ रहे होते हैं या हमारा जिस डोमेन में इंटरेस्ट होता है वो हमारा बैकग्राउंड शो करता है पिक्चर के थ्रू. तो सिंस मैं एक मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, तो मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में क्या होता है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर है, ये सारी फील्ड्स हो रही होती हैं मैकेट्रॉनिक्स में. तो इस तरह से मैंने अपने आप को पिक्चर में शो किया हुआ है कि मेरी जो फील्ड है वो इंटेंगल्ड है हर फील्ड से. मैं किसी भी फील्ड में जाके वर्क कर सकती हूँ, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सॉफ्टवेयर हो, कंप्यूटर साइंस हो, किसी भी फील्ड के जॉब्स होंगी तो मैं आराम से वहाँ पे फिट इन हो सकती हूँ. मुझे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Then we have our headline. Headline basically shows us the current moments of our life, like whichever we are doing currently, the things. So I am a mechatronics engineer and will be graduating from Zabis in 2023. Then my current position is at Zimco, which is internship coordinator right now, but I have to edit that. But still, my profile is up to date. Just the current position is not up to date, but we can edit that with this pen, and you can see the highlights can be edited like this, like mechatronics engineer. Okay. I'm a mechatronics engineer from Zabis. I'll be graduating in 2023. Then you can write your current position as intern at Zimco International Corporation. Then I have another internship going on side by side, which is at Karachi Tools and Dies Mold Center. I am a CAD trainee over there. So you can mention, if you are doing two internships, then you can mention both the positions simultaneously. Then what is your X factor basically that highlights your expertise is that, and like my X factor is CAD expert. I'm a CAD expert. I can design anything on AutoCAD. So that's my expertise. Whichever, if you are an electrical engineer, you can mention the softwares which you use frequently, which you are good at. If you are a mechanical engineer, you can mention the machine design stuff or SolidWorks, which you are good at. If you are a software engineer, you can mention the programming languages that you know or you're good at, or if even you can mention front end developer, back end developer, web developer, app developer, so on. So then we have to mention our current position. Basically, what is your current position at Zimco? Basically, it is Power Systems and IIoT intern at Zimco International Corporation. This is your current position. So you can mention this. Then you have the industry, which industry you are working at in right now. Industrial automation, industry 4.0. So we are going to mention industrial automation. Then we have our country, sorry, when we have our education, if you are an NLD student or a Sarasate student or a Dawood University student, then you can mention accordingly.
Like I'm a student from Shahid Zulfikar Ali Bhutto Institute of Science and Technology, in short Zabis, so I have mentioned like this. Then we have our country and city. The you can mention Pakistan in the country, and in the city you can mention either Lahore, Islamabad, whichever you are resident in. Okay, so this is our headline part. How do we edit our headline? Then we have our hashtags. How do we edit our hashtags, and what are our hashtags? Hashtags are basically the things or the our interested areas in which we want to talk about. Like we usually talk about that. Like if I'm a mechatronics engineering student, then I talk about industrial automation. And if I am interested in industrial automation or industry 4.0, then I mention like that. Then we have how do we get the hashtags? Then so we if we come down to our dashboard, it shows here the creator mode. We click on the creator mode, and then we can add our topics. The one who are using for the first time LinkedIn can see a short description over there that add title. When you click on add title, then you can add your topics accordingly. Like if I am adding this, if I can use this is, if I click on add topic, then I can add my favorite topics accordingly. Like I can add SolidWorks as well if I want to, but since I'm not adding, then this is it. You have a choice of minimum 5 topics, okay, so that you can add accordingly. Then for important is that you have to on this creator mode, okay, don't off this. ये क्रिएटर मोड ऑन रहेगा तो फिर आपके पास हैशटैग्स होंगे. जैसे अगर मैंने इसको ऑफ कर दिया और इसे ऐसे सेव किया तो मेरे हैशटैग्स गायब हो गए. सी, इसलिए आपको क्रिएटर मोड ऑन रखना पड़ेगा अपना. अब ये क्रिएटर मोड किस तरह से ऑन होगा? ये क्रिएटर मोड पे क्लिक किया मैंने, देन नेक्स्ट, देन उसके बाद मेरे ये हाईलाइट्स हैं सारे, उसके बाद मैंने इसे सेव कर दिया डन करके. तो अब मेरे पास इस तरह से वापस आ गए. अब मैं अपने व्यू गो टू माई प्रोफाइल करूंगी तो मेरे पास इस तरह से ये शो हो जाएगा. माई हैशटैग्स आर बैक. सी, आर यू गाइस फॉलोइंग? मैम एक दफा ये ऑन और ऑफ वाला दोबारा बताइए. अच्छा, ये क्रिएटर मोड है. क्रिएटर मोड पे क्लिक किया, ये इस तरह से शो हुआ. अब क्रिएटर मोड को अगर मैंने ऑफ कर दिया अपना और फिर इसको सेव किया तो माई हैशटैग्स आर गॉन नाउ. इफ यू कैन सी माई हैशटैग्स आर गॉन. ठीक है, अब एक मिनट. ओके, अब हाउ विल आई गेट माई हैशटैग्स बैक? बाय क्लिकिंग ऑन क्रिएटर मोड. Since my hashtag the creator mode is off, so my hashtags are gone. When I click on this, it will see like this. Then I click on next. Then I will add these. Already I was talking about them, so it is already present. But if the one who is using for the first time will have add title like this, it will appear like this, add title. Then you will click on this and then add your topics accordingly. After adding this, you have to save it, and then it's done. See, and then go to your profile, and then this is how your hashtags are back, and you can add your hashtags like this. Clear so far? Hello guys, are we clear? Yeah. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes. Okay, now moving further. This is my featured. Okay, how will I get this? Now this is also something. Now this is called add section. Okay, you click on the add section, so you'll get all these which we have talked about already, that we have certain sections in our profile. Like we have intro, which we already discussed. Intro is basically our headline, okay, which we already discussed. Okay, then we have our about. Okay, what will our about will show?
first of all we'll discuss the featured part. Okay, featured are basically showing us that what are we focusing on currently. Like if you see in my featured, what do I have? I will be starting a new internship in November, which is on content development. So it's with basically Sparks Foundation. So this is my certificate which I have featured in my profile. So this is it. This is how it goes. Okay. Then what do I have next? This is my internship coordinator pick. Then this is my certificate, which I attended a session with the engineers talk. Okay. Then what else do I have? Like this is my, see, this is my featured. I have so much to make the world see. Okay, I have certificate of web development as well. I have attended a LinkedIn career with Sir Fahad as well. After that, I met him. Then I got this appreciation certificate for my society, in which I am a part of. I attended a training program with the USAID Facebook. Then I attended a training program again with financial literacy, or State Bank of Pakistan. Then I had published my internship letter with the Intern Mind. Then this is a session which I attended with my university society, which is on hypertension. And this is again the certificates. Basically, the featured will show you your certificates. Okay, whichever certificates do you have. I have written an article, so I attached the link for the article in the featured. Okay, like this. Okay, what do we have next? Again, I participated in an article writing competition with my society, so I added that certificate. Then I did some short course on digi skills, so I added that as well. Getting it? Then I attended a webinar on with ND society, so I got this as well, certificate of attending. Then this is a do you know our Saad Alam? Anybody know Saad Alam from Microsoft? No. Acha, yeah, there's a guy Saad Alam, okay? He is a Microsoft certified trainer who is very fond of Microsoft stuff. So I would recommend you all to add him. I will share his profile link with you so that you can add him, and if you are interested in the Microsoft trainings and all that stuff, then you can do that accordingly. Okay. Acha, next we have this is my when I got to become an assistant director. So this is my post of that. I added that. Okay. So this is how our featured looks. So featured is all about our achievements, which we can show through certificates. Any question, guys? Guys? No, ma'am. अच्छा, तो आप लोगों में अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कोई सोसाइटीज में पार्टिसिपेट करता है अपनी यूनिवर्सिटी में या फिर वेबिनार्स में या किसी सेमिनार में? Yes, I am a part of Yes, one ma'am. of the societies of my university. तो मतलब सर्टिफिकेट मिलते हैं आपको? Yes, गाइस, मैं we do. चैट नहीं पढ़ Actually, I'm सकती, sorry, आप लोगों को माइक खोल के बात करना पड़ेगा. Do that. Yes. No, I was saying to others that whoever is typing, I can't read the chat. So you have to Okay. better, open the mic and talk to yourself. Okay? What do we? Acha. Okay. So this is what our featured part. So feature will tell us that tell the recruiters that how we are engaged in other activities. Like you can tell this is share the certificate of internship as well, whichever you will get at Zimco. Okay, you can share that as well. You can share your certificates as well. If you are an assistant director and you got a post from the society, then you can share as well. So this is it.
Then you have our activities, okay? Acha, the followers. For the internship certificate at Zimco, you need to have minimum 500 contacts, okay? Connections. I have approximately 1,230 followers right now, which are my connections. So in order to gain this much amount of connections, you need to be active on LinkedIn. If you can see how much I am active, so you also have to be active with on LinkedIn, because you have to be, getting all the attention from the recruiters. LinkedIn is the best platform for anybody to, get job frequently. Okay, so you need to be active. Now we have about. If you can see my about, it's only of 2.5 lines. Okay, इतना कोई किसी का टाइम नहीं होता कि पूरी पूरी प्रोफाइल बैठ के पढ़ता रहे कि ये इसको क्या पसंद है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसकी क्या क्या इंटरेस्ट है. सिर्फ प्रोफाइल में जो आपका अबाउट होगा ना, वो बिल्कुल प्रिसाइज होगा और वो भी कैची इस तरह से. लाइक मेरे प्रोफाइल में क्या लिखा हुआ है, आई एम अ डेडिकेटेड इंडिविजुअल हु इज हाईली स्किल्ड विद अ ड्यूल path and is passionate about learning new technologies and advancement happening in the world. So far, managed to balance the equations of engineering in a commendable manner. तो मैंने इस तरह से लिखा है कि रिक्रूटर्स को लगे कि हाँ भाई मेरे अंदर थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर है कि मुझे मजाक करना भी आता है और अपनी बात को पोर्ट्रे करना भी आता है. मतलब मजाक मजाक में मैंने ये बोल दिया कि हाँ भाई मैं स्ट्रगलिंग कर रही हूँ इंजीनियरिंग के साथ और पढ़ भी रही हूँ आगे. मैं डेडिकेटेड हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं इंजीनियरिंग के इक्वेशंस को मैनेज भी कर रही हूँ. तो ये रिक्रूटर्स को एक तरह का हंसी भी आएगी पढ़ते हुए कि हाँ भाई इसने मजाक मजाक में अपनी पूरी लाइफ की हिस्ट्री बता दी कि भाई ये खुश भी है और उदास भी है कि इंजीनियरिंग कर रही है, लाइक दैट. तो इस तरह से तो मतलब आपको अपनी प्रोफाइल में जो अबाउट होगा वो बिल्कुल प्रिसाइज होगा, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है. जैसे लोग लिखते हैं ना, पूरी पूरी सीवी की लिख देते हैं कि हाँ भाई हमारा एम और ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने क्या क्या किया है. भाई वो एक्सपीरियंस में आ जाता है. आपको सिर्फ अपने अबाउट में प्रिसाइज लिखना है कि आपको आप हैं क्या और आप में क्या क्वालिटीज हैं. अंडरस्टूड? नाइस. Yeah. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, अब नेक्स्ट वी हैव एक्सपीरियंस. ठीक है, अब एक्सपीरियंस में जो आपने जिसने मुझे पूछा था कि पास मतलब इंटर्नशिप किस तरह लिखना है, तो इस तरह से. अब मेरे पास मेरी करंट इंटर्नशिप है बेसिकली, जो कि पावर सिस्टम एंड IIoT की इंटर्न थी. ठीक है, अभी मैंने इसे अपडेट नहीं किया है टू इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर, बट आई विल अपडेट इट सूनर. ठीक है, तो इस तरह से मेरी करंट इंटर्नशिप. फिर मैं स्टूडेंट ब्रांड एम्बेसडर हूँ एट द नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम फॉर यूथ. देन आई एम अ कैट ट्रेनी एट, जैसे मैंने बताया था कि कराची टूल्स एंड डाइज मोल्ड सेंटर में मैं कैट ट्रेनी हूँ. फिर I was an online tutor basically. Now I don't have any time to tutor students. Then I was a campus ambassador with Intern Mind. Okay, this is my experience so far. I have more experience as well, but the main part of this experience is that this. If you can see this badge, how will you get this badge? Now I will demonstrate it to you. That if you can see the experience. Now I am writing a random stuff. Okay, if I write like this, intern, please guys follow this. Okay, now I am writing intern. Whatever intern you are, if you are an engineer intern, then you can write engineer intern. Then where you are employing, it's an internship. Okay, internship. Basically, you have options. Like if you are having a job, then you have to write full time. If it's a part-time job, then you can write part-time. If you are self-employed, like if you are tutoring someone or like graphic designing and all that stuff, then you can write self-employed. If you are a freelancer, then you can write freelancer. Then you write if you have a contract with in any company of 6 months or 1 year, then you can write a contract about it. Okay. Now I'm doing internship, so I will mention internship. Then I have the company name that okay, and I will be starting an internship with the Sparks Foundation, so I will write the Sparks. See, this is the Sparks Foundation.
Now this will be my current the future internship basically. Now where will be it? It will be in Maharashtra, India. Okay, it's a virtual based internship basically. Okay, then what we have? When will we are starting? I will be starting in November. Then in the year 2021, am I ending any internship? No, I'm not ending any internship. ठीक है, अच्छा हम इसको अक्टूबर कर दें ताकि समझ आने में आसानी हो. ओके, अक्टूबर कर दिया. अब नेक्स्ट वी हैव, डू आई हैव टू एडिट माय हेडलाइन? अच्छा, मेन चीज़ ये है कि जब जब आप कोई न्यू पोजीशन ऐड करेंगे अपनी प्रोफाइल में, आपको अपनी हेडलाइन भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज करनी पड़ेगी. अभी हम हेडलाइन चेंज नहीं करते हैं क्योंकि हेडलाइन चेंज नहीं, अब ये स्टार्ट तो हुई नहीं इंटर्नशिप मेरी. देन अब हम इसको सेव करेंगे. अब जब मैंने इसे सेव किया तो मेरे पास एक ये आया ऑप्शन कि योर पोजीशन हैज़ बीन एडेड एंड टेल अस हाउ यू गेट दिस जॉब. अब आपके पास ये एडवांटेज है कि जब आप किसी भी लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करते हैं जॉब के लिए तो आपको लिंक्डइन के थ्रू आराम से जॉब मिल जाती है, रादर देन स्ट्रगलिंग टू द ऑफिसेज एंड गोइंग टू द एचआर डिपार्टमेंट एंड ऑल दैट स्टफ. ये सबसे इजीएस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको जॉब फटाफट मिल जाती है. तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आपको लिंक्डइन ने हेल्प की जॉब में, तो आपने लिखेंगे यस. अब आपसे पूछ रहा है कि डिस्प्ले लिंक्डइन हेल्प मी गेट दिस जॉब ऑन योर प्रोफाइल, तो आप इसे टिक कर देंगे. तो जब आप इसे टिक करेंगे तो फिर आपके पास इस तरह से शो हो जाएगा लाइक दिस. ठीक, ये इस तरह से आपके पास बैच शो हो जाएगा लाइक दिस. आया समझ? गाइस Yes. Yes, ma'am. ठीक है, अब मैं इसे डिलीट कर देती हूँ फटाफट क्योंकि अभी नवंबर में स्टार्ट होने वाला है. तो ये हमारे पास इस तरह से बात आता है. अब आपकी जो जिनको इंटर्नशिप है उसमें भी आप लोग ऐसे ही करेंगे कि आपने लिखा पावर सिस्टम एंड आईआईओटी इंटर्न, देन कहाँ इंटर्नशिप कर रहे हैं, जिमको. क्या है वो इंटर्नशिप है, फुल टाइम है या पार्ट टाइम है? तो बेसिकली इंटर्नशिप कर रहे हैं तो इंटर्नशिप हो गई. देन हम कहाँ कितने आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट डेट क्या है आपकी, अक्टूबर है, और अभी आप कर रहे हैं प्रेजेंटली तो आपने प्रेजेंट पे उस पर करा हुआ है करंटली. फिर उसके बाद आखिर में जब आपने सेव कर लिया होगा तो फिर आपके पास इस तरह का ऑप्शन आएगा कि डिड लिंक्डइन हेल्प यू गेट दिस जॉब, तो आप उस पर क्लिक करेंगे यस. और फिर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास इस तरह से आ जाएगा कि बैच लगाना है या नहीं लगाना. तो फिर आपके पास ये बैच आ जाएगा जिस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा. अच्छा, आप मुझे कोई वॉलंटियरली दिखा सकते हैं अपनी प्रोफाइल शो करके कितना किसी ने कैसे किया है हमारे साथ? कौन बताएगा? रुमान? रुमान Yes, अकरम? ma'am. अच्छा, आर यू फॉलोइंग अस? Yes. अच्छा, कैन यू शो अस आवर प्रोफाइल, योर प्रोफाइल वॉलंटियरली? Yes, ma'am. Actually. श्योर. ओके गाइस, बी रेडी क्योंकि मैं रैंडमली किसी को भी बुला सकती हूँ, मतलब स्क्रीन शेयर करने के लिए. सो आई होप यू गाइज आर फॉलोइंग. नाइस. बैकग्राउंड पिक रोमान, और आई प्रोफाइल पिक्चर भी डिसेंट होनी चाहिए, लाइक बैकग्राउंड थोड़ा डिसेंट होना चाहिए. हेडलाइन भी हो गई, हैशटैग भी हो गए. बस रोमान आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर और बैकग्राउंड को सही कर लें, बाकी सब कुछ तो वेल एंड गुड है. Okay, ma'am. Ma'am, I'm not able to edit my hashtags. क्रिएटिव मोड पे क्लिक किया? मैम वो समझ ही नहीं आ रहा, एक दफ़ा बता दें. अच्छा, एक मिनट.
आया नजर? या मैम, बता दें थोड़ा। ये क्रिएटर मोड पे हमने क्लिक किया, ये क्रिएटर मोड नजर आ रहा है डैशबोर्ड पे। जी जी मैम, आगे बोले। हेलो, गाइस नजर आ यस रहा है मैम। आप लोगों को? जी आ रहा है। ये क्रिएटर मोड पे हमने क्लिक किया तो हमारे पास इस तरह से ऑप्शन आ गए। अब जो फर्स्ट टाइम यूज कर रहा होगा इसे, उसके पास इस तरह से आ रहा होगा ऐड टाइटल करके। आया समझ? जब हम ऐड टाइटल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास हम लोग ऐड कर सकते हैं सारे टॉपिक्स। जैसे अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर है तो वो सॉलिड वर्क्स, ऑटोकैड ये सब लिख सकता है अपने पास। और अगर चाहे तो मशीन डिजाइन लिख सकता है, क्योंकि मशीन डिजाइनिंग भी होती है मैकेनिकल में। अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो वो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में लिख सकता है कि जैसे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। पाइथन है, रास्पबेरी पाई है, और बहुत सारी और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी हैं। या तो वो फ्रंट एंड डेवलपर भी हो सकता है या बैक एंड डेवलपर भी हो सकता है अगर सॉफ्टवेयर का है। अगर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक का है तो पीएलसी और बहुत सारी चीजें लिख सकता है, पावर सिस्टम्स एंड ऑल दैट स्टफ। इस तरह से यहाँ पे टॉक्स अबाउट भी लिख सकते हैं हम लोग। ये हमारे टाइटल आ जाएंगे इस तरह से। जैसे अब मैं मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हूँ तो मुझे कैड डिजाइनिंग के बारे में बात करने का शौक है, इंडस्ट्री 4.0 के बारे में बात करने का शौक है। ये सब चीजें हम इस तरह लिख सकते हैं अपने हैशटैग में। ठीक है? गाइस, यस मैम, समझ में आ गया। ओके। अच्छा, अब हम एक्सपीरियंस भी हमने कवर कर लिया था। एक्सपीरियंस समझ आ गया सबको? एक्सपीरियंस एंड फीचर्ड। जी। फीचर्ड में बेसिकली अगर आप कोई पोस्ट डालते हैं ना, जैसे मैंने पोस्ट को अपने फीचर्ड किया हुआ है। आपने अपनी पोस्ट डाली कि हाँ, आई हैव गॉट दिस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी फ्रॉम ब्ला 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 ऑर्गेनाइजेशन। देन आपने पोस्ट में इस तरह मेंशन कर दिया कि ये आपका सर्टिफिकेट है, जैसे मैंने मेंशन किया है। और उसके बाद आपने फीचर्ड में से कर दिया। फीचर में कैसे करेंगे? ये हमने प्लस साइन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन है, या तो ऐड पोस्ट करें, या तो आर्टिकल ऐड करें, या तो फिर लिंक कर लें ऐड। जैसे मेरे पास लिंक थी ना कि मैंने एक आर्टिकल लिखा था तो मैंने उसकी लिंक अटैच कर दी इस तरह से। फिर मेरी जो पोस्ट है, ये मैंने पोस्ट थी मेरे पास, मैंने उन पोस्ट को ऐड कर दिया यहाँ पे। तो इस तरह से हमारे पास फीचर्ड में हमारी सारी चीजें रहेंगी। फीचर्ड बेसिकली जितना ज्यादा आपके अचीवमेंट्स को हाईलाइट करे ना, आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा है। क्योंकि इससे रिक्रूटर्स को लगता है कि हाँ भाई, ये हमारे पास जो कैंडिडेट आ रहा है ये हर चीज में एक्टिव है, चाहे वो सोसाइटीज हो या किसी भी तरह का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो या वॉलंटियरिंग हो। तो इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी प्रोफाइल पे। Then we had discussed about our followers. Our followers should be minimum 500, क्योंकि जिनको कि इंटर्नशिप में आप लोगों को मिनिमम 500 कनेक्शन होने चाहिए ताकि आपको सर्टिफिकेट मिल सके। क्योंकि इससे आपकी प्रोफाइल पे इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ता है कि हाँ भाई, ये लोगों से कनेक्शन में रहता है, ये बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग है। आपकी सोशलाइजिंग की भी हैबिट होनी चाहिए ताकि लोगों से आप जिस तरह बात करें तो फिर आपको पता चले कि हाँ भाई, उसमें क्या एक्सपर्टीज है, वो क्या कर रहा है, मुझमें क्या फ्लॉज है, मैं उसको किस तरह से दूर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो सोशलाइज करने से आपको बहुत चीज़ों का पता चलता है। फिर आपकी एक्टिविटीज मैटर करती हैं कि आप जितना ज़्यादा इन फ्रंट ऑफ द आई रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। और इन फ्रंट ऑफ द आई रहने के लिए आपको क्या ज़रूरी है कि आप लोगों के पोस्ट पे कमेंट करें, उन्हें लाइक करें। लाइक भी नहीं, मतलब सपोर्ट, सेलिब्रेट और इंसाइटफुल इस तरह करके आप शो करें कि हाँ भाई, आपको इंटरेस्ट आ रहा है लोगों के अचीवमेंट्स में। देन हमारे अबाउट, अबाउट हमारा बेसिकली प्रिसाइज होना चाहिए
जो कि जिसमें हम ये बता रहे हो कि हमारा मेन एम क्या है, हम लोग हमारा किस तरह पे हमारा फोकस है, किस जगह पे हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब जैसे मेरी अबाउट में क्या है कि मेरी अबाउट में एक तरह का ह्यूमर भी आ रहा है कि हाँ भाई मैं एक इंडिविजुअल हूँ जो डेडिकेटेड भी है, लेकिन साथ साथ क्या कर रही है, वो बैलेंस कर रही है इंजीनियरिंग के इक्वेशंस को। अभी तक उसने बैलेंस कर लिया इंजीनियरिंग के इक्वेशंस को। तो ये मेरा अबाउट है, जिसमें थोड़ा बहुत ह्यूमर भी शो हो रहा है कि हाँ भाई एक इंडिविजुअल है जो डेडिकेटेड भी है, लेकिन उसे इंजीनियरिंग की इक्वेशंस हैंडल करने में अभी तक कोई बहुत मजा भी नहीं हुआ। देन मेरा एक्सपीरियंस क्या है जो कि आप लोग मेंशन करेंगे कि पावर सिस्टम एंड आईआईओटी इंटर्न कहाँ कर रहे हैं, जिनको कब कर रहे हैं, अक्टूबर से स्टार्ट सॉरी नवंबर से स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारी लिंक्डइन की प्रोफाइल में आ रहा है बैच, वो कैसे आएगा कि अगर हमने सेव कर लिया अपनी जॉब और फिर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि डिड लिंक्डइन हेल्प यू गेट दिस जॉब, तो आप ये लिखते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हमारे पास बैच आता है। अब अगर मैं दोबारा दिखाऊं आप लोगों को किस तरह से आता है, तो ये हमने प्लस साइन पे क्लिक किया, देन पोस्टेड आर इंफॉर्मेशन के इंजीनियरिंग इंटर्न या फिर जो भी इंटर्न है आप, फिर आपने इंटर्नशिप मेंशन की, इंटर्नशिप स्पार्क्स फाउंडेशन महाराष्ट्र, ये सब। उसके बाद फिर हमने सेव किया, तो हमारे पास इस तरह क्वेश्चन आ गया, डिड लिंक्डइन हेल्प यू गेट दिस जॉब, टेल अस हाउ यू गॉट दिस जॉब। तो हमने प्रेस किया यस पे, फिर हमारे पास आया कि डिस्प्ले लिंक्डइन हेल्प यू गेट दिस जॉब, हमने इस पे क्लिक किया और देन वी सेव्ड। तो हमारे पास ये इस तरह से शो हो रहा है। ये बेसिकली एग्जाम्पल है जो मैंने आपको दिखाया है करके, जो अभी आपको रुमान ने भी करके दिखाया था अपने पास, कि रुमान ने भी ऐड किया है। Okay. Oh. अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास एजुकेशन। एजुकेशन हमने किस तरह से मेंशन की है, हम लोग अपने करंट पोजीशन से होते एजुकेशन से होते हुए फिर हमारी लास्ट एजुकेशन पे जाएंगे। ठीक है, अब हमारी करंट एजुकेशन क्या है कि हम लोग बैचलर्स कर रहे हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, एनडी, सर सैयद दाऊद यूनिवर्सिटी, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है आपने वो लिखा। अब वो किस तरह से आएगा, ये हमने दोबारा प्लस साइन पे क्लिक किया, अब यहाँ यूनिवर्सिटी का नेम आ जाएगा, यहाँ डिग्री आएगी जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होगा, फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, फील्ड ऑफ स्टडी क्या होगा आपका, जो आप अभी करंटली कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर रहा है, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है, तो वो लिख देगा यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट कब की इंटर्नशिप, जैसे अगर मैं अपना बताऊँ तो मैंने 2019 में स्टार्ट किया था इन सितंबर, तो मैं उस तरह से शो करूँगी। फिर मैं एंड कब करूँगी कि टेंटेटिवली मैं एंड करूँगी दिसंबर में, तो मैं दिसंबर लिख दूंगी, दिसंबर 2023। फिर उसके बाद मेरा ग्रेड नहीं मेंशन करते, क्योंकि उससे भी आपके काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आपकी प्रोफाइल में आपको सब चीज़ें दिखानी होती है। अगर आप खराब पढ़ रहे हैं या एवरेज स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी में, तो वो ना आपको डिस्प्ले नहीं करना है, क्योंकि आपको कुछ हर बात नहीं शो करनी है अपने बारे में, आपको अपने नेगेटिव फ्लॉज छुपाने हैं लिंक्डइन पे, इस तरह से कि आपकी स्किल्स हैं वो हाईलाइट कर सकें आपकी पर्सनैलिटी को। आपकी हमेशा याद रखिए, कभी स्टडीज आपको हाईलाइट नहीं करती, आपकी स्किल ज्यादा हाईलाइट करती। प्रोडक्ट दिखाना है कि जी आपके पास क्या क्या है ऑफर करने को टू द रिक्रूटर्स, टू द कंपनी। तो आई वुड रेकमेंड कि आप लोग सीजीपीए ना लिखें, जैसे मैंने भी लिखी सीजीपीए। ऐसी बात नहीं है कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, लेकिन बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ, हर जगह अपने आप को एक्सेल कराती हूँ। अभी आपने देखा है मेरे सर्टिफिकेट्स में मैं इतनी ज्यादा सोशलाइज करती हूँ हर सोसाइटी में। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर उसके बाद हम यहाँ पे सेव भी कर दें। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक्टिविटीज में क्या लिखा हुआ है कि डिबेटिंग सोसाइटी जीएम, जीबीएम मतलब जनरल बॉडी मेंबर हूँ मैं डिबेटिंग सोसाइटी में।
Then what else I am? I am in ASME as well. Then I am in Social Sciences Society as well, HR department. Then I am in Literacy Society as well, the Publication department. Then I am in Bioscience Society as well. First I was in operations, then I got promoted to marketing department. फिर आई हैव डन बीकॉम, तो मैंने यहाँ पे बीकॉम का भी लिखा है, लेकिन अगर आप लोग अपनी इंटर के लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर कोई डबल ग्रेजुएट है तो वो भी लिख सकता है। अब मैंने अलीगढ़ से डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग किया है। अब डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इज इक्विवेलेंट टू द इंटरमीडिएट बेसिकली, तो मैंने ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फिर आ गया हमारे पास लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन। अब लाइसेंस सर्टिफिकेशन किस तरह से आता है, जैसे मैंने बताया था ना अभी आपको शॉर्ट कोर्स किए मैंने, लेट मी शो यू। ये इस तरह से मैंने शॉर्ट कोर्सेज किए ना, डिजी स्किल्स थे, तो मैंने उस तरह से यहाँ पे ऐड किया है अपना। अब अगर मैं आपको दिखाऊं किस तरह से है, तो ये इस तरह से मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है। कहाँ से किया है? डिजी स्किल्स से किया है। फिर उसके बाद इसका कोई वो नहीं मिला था मुझे, आई मीन इसका मैं कोई लिंक नहीं जनरेट कर सकती थी, इसलिए मैंने यहाँ पे बिना लिंक के किया है। फिर उसके बाद मैंने कब इस सर्टिफिकेट को मुझे मिला, ये सर्टिफिकेट बेसिकली जैन में मिला था मुझे, जनवरी में। फिर उसके बाद ये मेरा सर्टिफिकेट का URL है जो मेरे ड्राइव पे सेव है, ताकि लोगों से व्यू सकें आराम से। हालांकि मैंने पोस्ट डाला हुआ है फीचर्ड में, लेकिन स्टिल। फिर उसके बाद लिंक्डइन पे शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, फ्री शॉर्ट कोर्सेज, आप वो भी कर सकते हैं, जैसे मैंने किए हुए फ्यूजन 360। ये बहुत इफेक्टिव रहता है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। गाइस, आर यू फॉलोइंग? Yes, yes. गाइस, Yes. Yes, ma'am. अच्छा, लिंक्डइन मैं बता रही थी कि लिंक्डइन पे शॉर्ट कोर्सेज होते हैं। चाहे आप अगर आपको शॉर्ट कोर्सेज करने का शौक है, जैसे अभी कोई इसका मुझे मैसेज आया था कि कोई शॉर्ट कोर्स कर रही है NLD से, तो आप वर्चुअली भी शॉर्ट कोर्सेज कर सकते हैं। आपको खास तौर से जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आजकल वर्चुअल का ज़माना है, सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया, तो ऑनलाइन कोर्सेज भी इफेक्टिव रहते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे यूडेमी है और बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है, कॉर्सेरा है, और ये लिंक्डइन का अपना खुद प्रोफाइल है, फिर डिजी स्किल्स है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म फ्री कोर्सेज होते हैं, शॉर्ट कोर्सेज, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, और फिर आपको फिर सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। तो इस तरह से। और आई वुड रिकमेंड कि आप लोग वहाँ से शॉर्ट कोर्सेज करें जो जिनकी ना रेटिंग अच्छी हो। जैसे अब माइंडस्टॉर्म इंजीनियरिंग है, उसकी रेटिंग अच्छी है। फिर उसके बाद डिजी स्किल्स की रेटिंग भी अच्छी है। तो वहाँ वो उससे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है कि आप कहाँ किस जगह से शॉर्ट कोर्स कर रहे हैं, उसकी रेटिंग कितनी है, क्या वो पब्लिकली रिकग्नाइज है लोगों में या नहीं है। उससे भी एक इम्पैक्ट पड़ता है आपकी CV पे, कि आप किसी भी मतलब छोटे मोटे जगहों से मतलब कंप्यूटर ग्राफी से कर लिया या कुछ भी, और इस तरह इम्पैक्ट नहीं आता। आप अच्छी जगह से करेंगे तो फिर आपका इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ भाई इसके अंदर स्किल्स हैं, जिसने जो ये तरह से दिखा रहा है। आपको पब्लिक मतलब आपको हाई प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशन का अंदाजा होना चाहिए कि कौन सी इस वक्त हाई रेटिंग पे चल रही है ऑर्गेनाइजेशन और कौन सी लो रेटिंग पे चल रही है। अब जैसे माइंडस्टॉर्म इंजीनियरिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा इन है अपने शॉर्ट कोर्सेज के लिए, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। सो दिस इज द लाइसेंसिंग पार्ट। देन वॉलंटियरिंग, अब मैं वॉलंटियरिंग भी करती हूँ। तो जैसे आप लोग सोसाइटीज़ के पार्ट होंगे, तो आप लोग सोसाइटीज़ का लिख सकते हैं। जैसे आप सोसाइटीज़ में क्या क्या है, जैसे कोई असिस्टेंट डायरेक्टर हो सकता है, या कोई अगर कोई है सोसाइटी में जो असिस्टेंट डायरेक्टर हो या प्रेसिडेंट हो यहाँ पे। I'm actually serving as a director right now of team event management. Oh wow, nice. NLD? Yes, NED. Right. Who else? कोई और कर रहा है वॉलंटियरिंग? कम ऑन गाइस, मैं भी आप लोगों की तरह स्टूडेंट हूँ, मुझसे इंटरेक्ट करो। इतना फॉर्मल होने की क्या जरूरत है? अच्छा, अगर नहीं करते तो कोई बात नहीं, अभी आपके पास टाइम है काफ़ी, आप आराम से वॉलंटियरिंग कर सकते हैं, चाहे आप सोसाइटी में कर लें या फिर अगर आपको जैसे यहाँ पे स्पेशल ओलंपिक्स में मैं करती हूँ। जैसे डाउन सिंड्रोम, पता है आप लोगों को डाउन सिंड्रोम क्या होता है? जो स्पेशल किड्स होते हैं, जो जिनकी कॉग्निशन डेवलपमेंट नहीं हुई थी, तो उनको Yes. हाँ, तो उनके लिए मैं वॉलंटियरिंग करती हूँ।
KDSP पे करती हूँ वॉलंटियरिंग, एंड स्पेशल ओलंपिक्स में भी किया है मैंने वॉलंटियरिंग। तो मुझे प्लांटेशन करने का भी बहुत शौक है, आई लव प्लांट्स, तो मैं प्लांटेशन में भी करती हूँ वॉलंटियरिंग। सो देन वी हैव स्किल्स। अब स्किल्स एंडोर्समेंट में हम वो अपनी टॉप स्किल लिखेंगे। अब जैसे आपको नज़र आ रहा होगा मेरे पास लिंक्डइन के बैजेस हैं ये, कि आई गॉट दिस बैज, जैसे आई हैव द बैज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, फिर माइक्रोसॉफ्ट अजोर, फिर की नोट, इस तरह से मेरे पास ये बैजेस हैं। इससे भी इम्पैक्ट पड़ता है आपकी प्रोफाइल पे। यहाँ पे लिखा हुआ है ना टेक स्किल क्विज। अब आप जैसे आपने अपनी स्किल्स लिख दी, फिर अगर आपको उन पर टेस्ट करना है कि आपको कितनी उन स्किल्स में आप एफिशिएंट हैं, तो आप यहाँ पे एक क्विज ले सकते हैं इस तरह से। ये आपने क्लिक किया, फिर आप जिसमें यहाँ पे होंगे आप वो इस तरह से यहाँ पे शो कर रहे होंगे कि आपके पास कौन सी स्पेशलिटी है, लाइक दिस। आप किसी भी एक क्विज को सिलेक्ट करें, उसके बाद फिर इसको क्विज दें, फिर आपको इसे बैज मिलेगा। ये जैसे मेरे पास बैज है, बैजेस हैं सॉरी, ये मेरे पास बैजेस हैं सारे। देन वी हैव रिकमेंडेशन। अब रिकमेंडेशन क्या होता है? रिकमेंडेशन आपको कोई भी दे सकता है, आपका टीम लीड। अब जैसे मैं इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर हूँ आप लोगों की, अब मैं आप लोगों को होस्ट कर रही हूँ इस वक्त, मैं आप लोग मेरे अंडर हैं, तो मैं आप लोगों को डील कर रही हूँ कि आप लोगों की परफॉर्मेंस किस तरह से है, आप लोग किस तरह से एक्टिव हैं, कम्युनिकेटिव हैं, पंक्चुअल हैं। तो ये सारी आपकी क्वालिटीज़ हाईलाइट हो रही हैं इन इंटर्नशिप में। तो ये सब मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ। अच्छा अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट्स। ओके गाइस, मैं बता रही थी कि अब हमारे पास जो रिकमेंडेशन होते हैं ना, उससे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी प्रोफाइल पे। अब रिकमेंडेशन आपको कोई भी दे सकता है, आपका सीनियर दे सकता है जिनके साथ आपने सोसाइटी में काम किया, और जैसे आपका सीनियर अगर प्रेसिडेंट था और आप उनके अंडर एज अ डायरेक्टर थे, तो आप वो उनसे मांग सकते हैं रिकमेंडेशन। आपने टीचर्स से मांग सकते हैं रिकमेंडेशन, जैसे आपने कोई FYP प्रोजेक्ट बनाया है या कोई भी प्रोजेक्ट बनाया हो, तो आप उस पर दिखा मेंशन करा सकते हैं अपने टीचर्स से कि वो आपको रिकमेंडेशन दे दें। जैसे मैंने भी एक रिकमेंडेशन दिया था अपने टीम मेंबर को, क्योंकि हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी, तो उसमें हमने किया था। तो मैं आई वाज अ सीनियर टू हिम, सो आई गिव रिकमेंडेशन टू हिम। लाइक इन दिस यू कैन सी दैट माय सीनियर्स हैव गिवन मी रिकमेंडेशन। अब रिकमेंडेशन हम कैसे मांगते हैं? रिकमेंडेशन हमें मांगना पड़ता है, हमें कोई खुद से नहीं देता। तो हमने ऐसे किया। अब बेसिकली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे आस्क फॉर रिकमेंडेशन पे।
अब हमने आस्क रिकमेंडेशन किया, अब हम किससे मांग रहे हैं रिकमेंडेशन? तो अब जैसे मेरे पास मेरे प्रोफेसर का नाम है आतिफ, ये मेरे प्रोफेसर का नाम है आतिफ सईद, ठीक है। ये मैंने क्लिक किया, देन आई वेंट टू कंटिन्यू। अब मेरा इनसे रिलेशनशिप क्या है? आतिफ सईद, आतिफ टॉट मी, ठीक है। अब उन्होंने मुझे पढ़ाया है, सिंस ये मेरे प्रोफेसर थे तो उन्होंने, मैंने लिखा है यहाँ पे आतिफ टॉट यू, क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया है। अब अगर आप कोई सीनियर है आपके से, बेसिकली अगर आपके कोई सीनियर होंगे तो आप यहाँ पे इस तरह से करेंगे। जैसे अगर आतिफ मैनेज यू डायरेक्टली, अगर आपको कोई सीनियर आपको मैनेज कर रहा होगा, जैसे अब मैं आपको मैनेज कर रही हूँ, आई एम द इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर, तो आप मुझसे रिकमेंडेशन मांग सकते हो। आप मुझे इस तरह से रिकमेंडेशन के लिए पूछ सकते हैं कि समरा मैनेज यू डायरेक्टली, आई एम मैनेजिंग यू डायरेक्टली, राइट। फिर उसके बाद अगर आपके कोई और हैं, जैसे अगर आपने सीनियर को रिकमेंडेशन करा रहे हैं, तो आप इस तरह से कर रहे हैं कि आतिफ वॉज सीनियर टू यू, यानी कि अगर आपने सीनियर से रिकमेंडेशन मांग रहे हैं तो आप अपने इस तरह मेंशन करेंगे कि जो भी आपका सीनियर का नाम है और फिर उसके बाद ही वॉज सीनियर टू यू, ठीक है। डिपेंड करता है आप किससे रिकमेंडेशन मांग रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अपना रिलेशनशिप डिसाइड कर सकते हैं इन ऑप्शंस के थ्रू, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे लिखा है आतिफ टॉट यू, ठीक है। अब ये मैं कहाँ से रिलेटेड है मुझसे? अब ये मुझसे जाबिस से रिलेटेड है, तो मैंने यहाँ पे जाबिस क्लिक किया। अब मैंने यहाँ लिखा हुआ है हाय आतिफ, वुड यू राइट मी अ रिकमेंडेशन। तो अब मैं हाय आतिफ नहीं लिखूंगी, मैं हाय लिखूंगी रिस्पेक्ट में, हाय सर। तो मैंने इसको ये आतिफ हटाया और मैंने लिख दिया सर, एंड देन आई हैव सेंट दिस रिकमेंडेशन। ओ अच्छा, मैंने ऑलरेडी सेंड किया हुआ है, तो इसे हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारी रिकमेंडेशन आ जाती है। अब आपके पास अब आप लोग अगर मुझे ट्राई करें, कोई मुझे ट्राई करना चाहेगा वॉलंटियरली? कोई मुझे करे रिकमेंडेशन के लिए पूछे? कोई जो फॉलो कर रहा है लिंक्डइन प्रोफाइल पे, वो मुझसे पूछ सकता है रिकमेंडेशन के लिए। कम ऑन गाइस, जो भी फॉलो कर रहा है हमें, वो रिकमेंडेशन मुझसे मांग सकता है इस वक्त। आई कैन रिकमेंड हिम ऑन स्पॉट। गाइस कोई मुझसे रिकमेंडेशन मांगना चाह रहा है? Who have we? We have मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद, अच्छा हमाद आरिफ, यस हमाद। गाइस कोई एक वॉलंटियरली मुझे रिकमेंडेशन के लिए पूछ ले, ताकि मैं उसे बताऊं किस तरह से होगा। Assalamualaikum Samra. Actually, I'm not able to find the recommendations on my LinkedIn profile. मैम पे सेम यही इशू मेरे साथ भी है। I'm अच्छा looking for it, but उजला, I'm can you not share your screen? Wait, Oh, can you share your just screen? wait. Yeah, wait a minute. Yeah, sure, you can share your screen, then I'll tell you. Ahmad, which inbox? LinkedIn one? Yes, ma'am. Okay, I got from Sabah.
Vijay, are you sharing your screen? Yeah, actually, I'm just trying. There's some issues. So just a moment. Yeah, sure, no problem. मैम Okay, क्या I मैं got. शेयर कर सकता हूँ? अच्छा ठीक है, आप कर लें. हाँ नहीं, रोमान कर रहा था. सॉरी सॉरी सॉरी. अच्छा अब रोमान वेट वेट वेट. रोमान अब हाँ अब क्लिक ऑन ऐड सेक्शन. ऐड सेक्शन, हाँ अब यहाँ से आएगा. जो मोबाइल से यूज कर रहे होंगे ना वो ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे और फिर इस तरह से उनके पास ऑप्शंस आ रहे होंगे. रोमान गो डाउन टू accomplishments, sorry, recommendation, additional information, sorry, additional information, yeah, ये आ गया recommendation, request recommendation. Okay Vijaya? Yes, I got it. Thank you. You're welcome. अब जो भी मुझे मतलब आप लोग मुझे ऐड कर लीजिएगा अपने साथ ताकि फिर मैं एक एक को रिकमेंडेशन देती जाऊँ. उससे फिर आप लोगों के पास एक इम्पैक्ट आ जाएगा कि हाँ भाई आपके इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर ने आपको रिकमेंडेशन दिया है कि थ्रू आउट द इंटर्नशिप हाउ वेल यू परफॉर्म, हाउ कम्युनिकेटिव यू वर, हाउ मच एक्टिव यू वर. तो ये सब मैं आपकी रिकमेंडेशन में हाईलाइट कर सकती हूँ आपके बारे में, क्योंकि ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा कि एक इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर ने आपको रिकमेंडेशन दिया है. और सिंस आपके प्रोफेसर से भी आप लोग इन कनेक्शन है और सीनियर्स को भी ऐड करें तो उससे भी आपकी प्रोफाइल पे अच्छा वो आएगा कि हाँ भाई ये काफ़ी ज़्यादा मतलब गुड इन रिलेशन है अपने सीनियर्स से, अपने जूनियर्स से, अपने प्रोफेसर से, यहाँ तक कि अपने कोऑर्डिनेटर से भी. तो आप लोग अपनी रिकमेंडेशन की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं हम तीनों हम 13 टीम लीड्स को. तो इस तरह से. ओके नाउ नेक्स्ट. I'm following you on LinkedIn, but I can't find your name on my recommendation list. Wait, I'll show you. Can you send me request? Yeah. I have got. Okay. Guys, you need to send me request, okay? Because without that I can't. Sir, I already have. अच्छा यहाँ बजी अली, हाँ I can see you. अच्छा we have Furqan Rahim. अच्छा now you can ask me Bajia. Safa, I'll give you recommendation in a while, ठीक है? Let me give Bajia first. Okay. So that मेरे पास आपका नेम शो नहीं हो रहा. क्या शो नहीं हो रहा? रिकमेंडेशन में आपका नेम शो नहीं हो रहा, प्रोफाइल नहीं आ रही. क्योंकि मैं आपके पास एडेड नहीं हूँ ना. जब तक आप मेरे पास ऐड नहीं होंगे तब तक मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे सकती. तो यू नीड टू ऐड मी फर्स्ट. वो सब कुछ टाइमली प्रोसेस की तरह हो जाएगा. आप लोग मुझे रिकमेंडेशन मतलब लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट भेजें. जैसे यहाँ भी मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है ना. दिस इज मरियम फातिमा, देन आई हैव अनुषा जावेद, देन आई हैव मोहम्मद एहसन. सी, अब आई वुड रिकमेंड यू ऑल मैंने कि आप लोग ऑलरेडी मुझे फॉलो हाथ किया हुआ है. फॉलो नहीं होगा. आप मुझे जो उस पर 3 डॉट्स बने हुए ना उस पर क्लिक करें तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा कनेक्ट का. ओके आया ना मैम. सर? Yeah, I got it. Okay, so this is Vajia's profile. ठीक है Vajia?
Yes. Congratulations. ठीक है, तो आई विल गिव यू recommendation in a while. So this is how you can send me recommendation. ठीक है, I hope you all understand this. ठीक है गाइस, डोंट वरी, आप लोगों को recommendation देती जाऊंगी क्योंकि अभी सेशन कंप्लीट है, तो पहले हम वो कर लें, फिर उसके बाद में आप लोगों को साइड बाय साइड recommendation भी देती Yes, जाऊंगी. that's okay. Don't worry about that. Okay, so next up we have skills हो गया था, ये recommendation हो गया. Now the biggest thing is accomplishment. अब आप लोगों को अगर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने का शौक है या किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने का शौक है, तो आप उसे यहाँ अकॉम्प्लिशमेंट्स में अपने दिख सकते हैं. जैसे अगर आपके पास लैंग्वेज है, मुझे 3 लैंग्वेजेस आती हैं बेसिकली, इंग्लिश, उर्दू एंड जर्मन. ठीक है, अब आप उन लैंग्वेजेस को यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि आपको कितनी लैंग्वेज आती है. किसी को जापानीज भी आती है, किसी को चाइनीज भी आती है. किसने किया शॉर्ट कोर्स चाइनीज का या जापानीज का एनडी से या सर सैयद यूनिवर्सिटी से? वो लोग करवाते हैं. Particularly course तो नहीं किया, but it was part of our semester. So we were taught Elective? Chinese actually. अच्छा, nice. Yes, electrical. Even this- Yes, electrical. अच्छा, नाइस. अच्छा, फिर उसके अलावा प्रोजेक्ट्स लिख सकते हैं यहाँ पे कि आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए. जैसे अब मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में बनाया था एक प्रोजेक्ट क्लैप स्विच का, और फिर वाटर लेवल इंडिकेटर बनाया था. उसके बाद से मुझे वो अपडेट करने का चांस नहीं मिला क्योंकि मैंने बहुत सारे बनाए प्रोजेक्ट्स. देन टेस्ट स्कोर. अब जैसे मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, तो मैंने वो मेंशन किया है कि स्कॉलरशिप मुझे मिली है, 2 स्कॉलरशिप्स. यहाँ पे इस तरह मैंने मेंशन किया हुआ है 2 स्कॉलरशिप्स. फिर ये मेरे 2 प्रोजेक्ट्स में दिखाएं जो कि मैंने अपडेट नहीं किए हैं. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. लेकिन फिर उसके बाद ये मैंने दिखाया है कि मैंने आर्टिकल लिखे थे, पब्लिश जो हुए हैं बेसिकली, मूवी रिव्यू, बायोग्राफी. फिर उसके बाद ये लाइफ गोल्स पे आर्टिकल. फिर उसके बाद ये मेरी लैंग्वेजेस हैं जो मुझे आती हैं. देन ये मेरे कोर्सेज जो मैंने पढ़े हैं, आप उसको भी हाईलाइट कर सकते हैं. उसके बाद वी हैव ऑनर्स के, अगर आपको कोई ऑनर मिला हो कभी बेस्ट स्टूडेंट का या बेस्ट अटेंडेंस का, तो आप वो लिख सकते हैं. या फिर अगर आप प्रोग्राम रिप्रेजेंटेटिव हो अपनी यूनिवर्सिटी में या क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो, तो उसका भी मेंशन कर सकते हैं कि वो भी आपके एक ऑनर्स और अवार्ड में आता है कि हाँ भाई ये क्लास रिप्रेजेंटेटिव है एंड शी गॉट दिस फ्रॉम द एचओडी. इस तरह से. सो टू सम अप, दिस वाज आवर सेशन फॉर द लिंक्डइन. अब अगर किसी को क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकता है. आर यू क्लियर? क्वेश्चन है आपसे, मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो क्या मैं ये इंटर्नशिप कर सकता हूँ कंटिन्यू? हाँ हाँ, क्यों नहीं. इसमें IIoT है ना, इंटरनेट, इसमें IIoT है, तो आप कर सकते हैं, जाहिर सी बात है. ठीक है मैम, ओके. बेसिकली ये जो हमारी इंटर्नशिप है, इसमें हर तरह के स्टूडेंट्स आ सकते हैं. मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सॉफ्टवेयर है, मैकेट्रॉनिक्स है, कोई भी आ सकता है. क्योंकि आप सिर्फ अपने आप को एक डोमेन तक नहीं रख सकते. आजकल जो हमारे पास एडवांसमेंट आ गई है टेक्नोलॉजीज की, उसके हिसाब से एक मैकेनिकल इंजीनियर को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्या क्या स्पेशलिटी है. एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की क्या क्या स्पेशलिटी है, प्रोग्रामिंग एंड ऑल दैट स्टफ. तो कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ से अलग नहीं है. आपको अगर अपना डोमेन भी पता हो ना कि आपको मतलब किस डोमेन में आपको कितनी ज़रूरत है IIoT की या पावर सिस्टम्स की, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता. क्योंकि अगर आप देखा जाए तो PLC में प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है. PLC बिना प्रोग्रामिंग के नहीं चलता, इफ यू नो. इस तरह से. सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप सॉफ्टवेयर है या कंप्यूटर साइंस है, इट डज हेल्प यू कि ये इंटर्नशिप इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. Any other question, guys? Guys? No, I don't think so. I have any. Okay. So you have. Now I'm going to stop this. Okay. Acha. So guys, you have a minimum. How much time do you want?
like it's right now 4:43, ठीक है? तो नमाज पढ़ के फिर उसके बाद थोड़ा बहुत अगर आप लोग लंच वगैरह भी करें तो if you start at minimum 6 p.m. ठीक है? तो till 7 p.m. I want your profiles updated, max 7 p.m. because after that, because I'll be giving you recommendation right now, ठीक है? Then you can update your profiles accordingly and you have the maximum time of 7 p.m. ठीक है? उससे ज़्यादा डिले नहीं करेंगे हम क्योंकि आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली है अब, so I want your profiles to be updated by today so that Sir Fahad can view that and then he can comment on that as well. Understood? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, so by 7 p.m. I need all your profiles, ठीक है, updated. And please post your profile links on the group as well so that I can view them accordingly and help you out if I see anything else. और मैं ये भी पोस्ट कर रही हूँ यहाँ पे रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में, तो आप लोग फिर वो व्यू कर सकते हैं. Any other questions, guys? Guys, do we have any more questions? Guys, No, ma'am. okay, that's good. Okay, so we'll see you in the next week. Okay, so have a good day and please update your profiles by 7 p.m. Okay, thank you. Okay, thanks a lot. Okay, ma'am. Thank you so much. Thank you, You're man. welcome. You're welcome.